Hello friends, hello students, good morning. Today we will begin with the poem and its name is The Snare. It has been composed by James Stephens. The writer is too much sensitive in writing this poem. The writer has I hear a sudden cry of pain. There is a rabbit in a snare. Now I hear the cry again, but I cannot tell from where. I hear a sudden cry of pain. There is a rabbit in a snare. Now I hear the cry again, but I cannot tell from where. But I cannot tell from where. He is calling out for aid. He is calling out for aid, crying on the frightened air, making everything afraid. Making everything afraid, wrinkling up his little face, wrinkling up his little face, as he cries again for aid, as he cries again for aid, and I cannot find the place, and I cannot find the place, and I cannot find the place. Where is Pa in the snare? Where is Pa in the snare? Little one, oh little one, little one, oh little one, I am searching everywhere. I am searching everywhere. Friends, the poet is very sensitive. The poet James Stephens is very sensitive here. All these lines are the very good example of repetitions. You may find the last line of first stanza matches with the first line of second stanza, but I cannot tell from where. But I cannot tell from where. Making everything afraid, making everything afraid, and I cannot find the place, and I cannot find the place. Very beautiful example of repetition you may observe here from this poem of ours. The poem has been divided into 4 stanzas. 1, 2, 3 and 4 stanzas are there. And each stanza is also divided into quatrains. The 4 lines stanza is called quatrains. The 4 lines stanza is called quatrains. 4 लाइनों के द्वारा विभाजित ये कविता बड़ी सुंदर ढंग से प्रस्तुत की है. कवि ने इसको 4 स्टेंजा में बांटा है. चारों स्टेंजा आप देख सकते हैं. बड़ा अच्छा उदाहरण है, रिपीटेशन का बहुत बड़ा उदाहरण है. पहले स्टेंजा की अंतिम लाइन दूसरे स्टेंजा की पहली लाइन से मैच करती नजर आ रही है. आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर. मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, एंड आई कैन नॉट टेल, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस. ये रिपीटेशन का बहुत अच्छा उदाहरण है मित्रों. जहां तक राइम स्कीम की बात है, कवि ने राइम स्कीम का बड़ा अच्छा प्रयोग किया. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहली लाइन का जो अंतिम साउंड है वो तीसरी लाइन से मिल रहा है, और दूसरी लाइन का जो अंतिम साउंड है वो चौथी लाइन से मिल रहा है. पेन अगेन और स्नेयर वेयर. आप फिर यहाँ देख सकते हैं वेयर मिल रहा है. एड ये सी नया आ जाता है. फिर अभी जो एयर का संबंध वापिस बी से मिल रहा है, और अफ्रेड यहाँ पर सी से मिल रहा है. इस तरह से सेकंड स्टेंजा की दूसरी और चौथी लाइन एक समान है, लेकिन सेकंड स्टेंजा की पहली और तीसरी लाइन वापिस मैच करती है पहले स्टेंजा की दूसरी और चौथी लाइन से. फिर आप आगे देखिए, बहुत बढ़िया ही इसने कवि ने सेट किया. आप देख सकते हैं जो अफ्रेड जो था, एड अफ्रेड, एयर अफ्रेड, सी सेम लाइन आप देख सकते हैं. फिर आप देख सकते हैं फेस प्लेस देख सकते हैं.
और यहाँ पर अफ्रेड और एड का संबंध जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं अंतिम 4 लाइनें। प्लेस, इसमें अंतिम लाइनों का आप देख सकते हैं। प्लेस का संबंध वापिस स्नेयर वापिस जाकर वापिस बी से जुड़ा हुआ नजर आता है। वेयर और स्नेयर वापिस जुड़ता है। और यहाँ पर आप लास्ट देख सकते हो वन और वेयर वापिस बी से जुड़ता है। तो कहीं न कहीं से इन लाइनों का मैचिंग इतना बढ़िया बनाया है कवि ने, राइम स्कीम पर अच्छा ध्यान दिया है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल पोएम, इट्स वेरी ब्यूटीफुल पोएम। नाउ वी विल explain the poem for your help. Though you know that poem is not worth explanation, it is understood automatically while recitating again and again in your mind. But our Hindi medium students generally face a great deal of problem while reading, while understanding the poem. For their help, I have to give the explanation of the poem once again so that they can understand, they can get good marks in their examination. In the first stanza, the poet say, प्यारे विद्यार्थियों, आइए मैं अब आपको कविता के पोएम के एक्सप्लेनेशन की तरफ ले चलता हूँ। कवि इस द स्नेयर यानी जाल, नेट होता है। कवि ने यहाँ पर जो बताया कि जो जाल बताया कवि ने वो कितना खतरनाक होता है। एवरीबडी वॉन्ट्स फ्रीडम इन हिज और लाइफ, जस्ट ह्यूमन बीइंग लाइक द फ्रीडम फ्रॉम ऑल द वर्ड्स। सिमिलरली द एनिमल्स ऑल्सो वॉन्ट्स फ्रीडम फ्रॉम अस। कवि महोदय यहाँ कहते हैं, आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, मुझे अचानक दर्द की आवाज सुनाई देती है। देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर, कि दूर कहीं एक जाल में खरगोश फंसा हुआ है। क्राई ऑफ पेन यहाँ पर एक सिंबल है। क्राई ऑफ पेन फ्रीडम का सिंबल है कि व्यक्ति फ्रीडम चाहता है। देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर, कि जाल में किसी शिकारी ने एक रैबिट को जाल में फंसा दिया है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, मुझे दोबारा आवाज सुनाई देती है, मुझे दोबारा चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, मुझे दोबारा रोने की आवाज सुनाई देती है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं कह नहीं सकता कि आवाज कहां से आ रही है। लेकिन मैं कह नहीं सकता कि आवाज कहां से आ रही है। कवि यहाँ बहुत अच्छा एक रिपीटेशन का उदाहरण देते हैं। दूसरी स्टेंजा की शुरुआत अंतिम लाइन से करते हैं कि मैं ये कह नहीं सकता कि आवाज कहां से आ रही है। मैं ये कह नहीं सकता कि आवाज कहां से आ रही है। ही इज कॉलिंग आउट फॉर इट, वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे बुला रहा है, वो सहायता के लिए बुला रहा है। यहाँ पर देखो ही बहुत अच्छे ढंग से पर्सोनिफाइज किया है रेबिट को ही। यद्यपि आपको मालूम है कि जंतुओं के लिए इत्यादि के लिए ईट का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर ही दिया। इसका मतलब कवि यहाँ पर पूरी तरह से उसके दिल से जुड़ा हुआ कहता है ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, वो मुझे बुला रहा है, सहायता के लिए बुला रहा है। वो फंसा हुआ वो व्यक्ति जो बेड़ियों में झगड़ा हुआ मुझे बुला रहा है। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, मुझे बुला रहा है सहायता के लिए। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, बुला रहा है मुझे भयानक वायु में चिल्लाकर, भयानक वायु में चिल्लाकर। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, सबको भयभीत कर रहा है, हर चीज को भयभीत कर रहा है, हर चीज को भयभीत कर रहा है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, हर चीज को भयभीत कर रहा है वो खरगोश। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, उसके छोटे से चेहरे पर शिकन व्यक्त कर रहा हूँ। रिंकलिंग यानी शिकन व्यक्त कर रहा हूँ, झुर्रियां पड़ रही उसके चेहरे पर। जब व्यक्ति कहते हैं कि जब तकलीफ में होता है तो उसके चेहरे पर स्वतः ही झुर्रियां पड़ने लगती हैं। तकलीफ के काल में किसके चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती, किसको पसीना नहीं आता है, किसको तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इसी तरह एक कवि अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा को रेबिट की आत्मा से मिलाता है और कहता है कि वो रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही हैं, शिकन महसूस हो रही है। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, वो दोबारा चिल्लाता है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, हे क्रूर मनुष्यों मुझे बचाओ, मुझे भी आजादी दो, मुझे भी बचाओ। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं कितना अभागा हूँ कि मुझे वो जगह ही नहीं मिल रही है। मैं कितना अभागा हूँ कि मुझे वो जगह ही नहीं मिल रही। वो कहाँ से चिल्ला रहा है आप देख सकते हैं लास्ट में। यहाँ पर कवि ने लास्ट में साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन यहाँ होता है। कवि कहते हैं कि मैं कितना अभागा हूँ कि
स्पा इज इन द स्नेयर, कि जाल में कहाँ फंसे हुए, कि व्यक्ति कहाँ फंसा हुआ है। ये दुनिया है ना पूरी जाल से बनी हुई है। इस दुनिया में समझ में नहीं आता है कि किस व्यक्ति का पाँव कहाँ फंसा हुआ है, कौन कहाँ किसके जाल में फंसा हुआ है, किसने किसको परेशान कर रखा है, कितना व्यक्ति दुखी है। हर व्यक्ति किसी किसी तरह की पीड़ा से भरा हुआ है। वेयर हिज पाव इज इन द फ्यूचर लिटिल वन, बेचारा छोटा सा। जब व्यक्ति तकलीफ में होता है तो चाहे वो मन से हो, चाहे तन से हो, चाहे धन से हो, चाहे परेशानी से हो, छोटा हो जाता है। लिटिल वन, ओ लिटिल वन। कवि का हृदय मन यहाँ पर, कवि का जो प्यार हृदय मन बोल सकता है एक छोटा सा लिटिल वन। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं उसे हर जगह ढूंढ रहा हूँ, मेरा मन उसे हर जगह ढूंढ रहा है। वो कहाँ गए, वो कहाँ गए, वो कहाँ गए दया के दाता। वो दया करने वाले लोग इस दुनिया से कहाँ चले गए, जिनमें दया के भाव हुआ करते थे। हे परमात्मा, हे परमात्मा, इस प्यारे से रेबिट को बचाइए, इसको हर तरह की स्वतंत्रता दीजिए। कवि बड़े निराले अंदाज में यहाँ पर प्रस्तुत करता है। ये जो कविता है वो पूरी तरह से याम्बिक टेट्रामीटर में लिखी हुई है। जैसे कि आपको जब मैंने द 7 एजेस जो मैंने पढ़ाई थी तब मैंने कहा था पेंटामीटर, लेकिन यहाँ पर जो पोएम है ये लिखी हुई याम्बिक टेट्रामीटर में लिखी हुई है। याम्बिक टेट्रामीटर लिखा हुआ है जिसमें बताया गया है कि इसके अंदर कि किस तरह से कवि ने यहाँ पर इसको अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। याम्बिक टेट्रामीटर आप यहाँ सामने देख सकते हैं। अबाउट द पोएम के बारे में बताना चाहूँगा। द पोएम डेपिक्ट्स ए रैबिट इन ए स्नेयर। द पोएम डेपिक्ट्स ए रैबिट इन ए स्नेयर क्राइंग आउट ऑफ पेन। कवि यहाँ पर एक रैबिट को देखता है जो दर्द से चिल्ला रहा है। द पोएट कैन रिकॉग्नाइज, कवि पहचान सकता है, कवि पहचान सकता है किसको, द वॉइस ऑफ द रैबिट विद हिज पॉ इनटू द स्नेयर, कि रैबिट की आवाज़ को पहचानता है। जिस तरह से हम हमारे घर के सभी सदस्यों की आवाज़ें पहचानते हैं, इस तरह से अगर हमारा हृदय बहुत बड़ा है, हमारा मन बड़ा है, अगर हमें प्यार मोहब्बत है तो हम जंतुओं की आवाज़ भी पहचान सकते हैं। द वॉइस ऑफ द रैबिट विद हिज पॉ इन द स्नेयर, द पोएट डेपिक्ट्स द सिचुएशन विद। कवि यहाँ पर सिचुएशन किसके साथ लाता है, सिचुएशन विद इफेक्टिव इमेजिंग, बहुत बड़ी कल्पना, एक कल्पना जिसको हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। एंड सिंपैथेटिक एटीट्यूड, और एक सहानुभूति का एटीट्यूड आता है कि जीवन में अगर हमारे मन में दया है तो हम विश्व को बचा सकते हैं, अगर हमारे मन में दया है तो हमारे से प्यार कर सकते हैं। द लास्ट लाइन ऑफ एवरी स्टेंजा इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वन। कविता की जो लास्ट लाइनें हैं वो हमें फर्स्ट वन से रिपीटेड, जैसा मैंने आपको बताया, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, रिपीटेशन का एग्जाम्पल है। परीक्षा में पूछा जा सकता है, राइट द एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेशन फ्रॉम द गिवन पोएम। तो आप ये देख सकते हैं अंतिम लाइनें जो है पे हर स्टेंजा की अंतिम और दूसरे स्टेंजा की जो पहली लाइनें उनको आप याद रखें तो ये आपका अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। द फर्स्ट 3 स्टेंजाज आर रिटन इन याम्बिक टेट्रामीटर। कवि ने जो पहले 3 स्टेंजा लिखे वो याम्बिक टेट्रामीटर्स के अंदर लिखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मीटर मैंने बताया था कि जब दो सिलेबल मिलते हैं तो वो 1 मीटर बनाते हैं, और इस तरह से वो जब उनका फ्रीक्वेंसी चलती रहती है तो बाद में वो याम्बिक टेट्रामीटर पेंटामीटर बनाते रहते हैं। विद स्ट्रेस एट द एंड, बट दिस डज नॉट हैपन इन द लास्ट स्टेंजा, लेकिन ये अंतिम स्टेंजा के अंदर ये जाके मिलता नहीं है। आप यहाँ पर देख, यू लर्न समथिंग अबाउट द पोएम द स्नेयर। इट्स वेरी नाइस पोएम एंड you have to recite it again and again so that you can go into the deeper and you can assume the real meaning from the core of your heart. So for today it is too much. We'll see you again the next day. Till then, goodbye. Thank you very much.